So, yesterday we have started a chapter third, that is plant kingdom. We have done two questions from this chapter, and today we are going to continue this chapter. Let's quickly रिवाइज कि हमने कल क्या क्या किया था. तो कल हमने चैप्टर नंबर जो 2 था वो कंप्लीट किया था हमारा, जिसमें हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो थी वो हमने की थी. एंड उसके बाद हमने जो चैप्टर नंबर 3 था, दैट इज़ प्लांट किंगडम, वो हमने शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 5 क्लासेस हैं प्लांट्स की, और उसमें से क्वेश्चन जो थे हमने किए थे. ब्रायोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन हमने कर लिया था, दैट वाई दे आर कॉल्ड एज amphibians of the kingdom Plantae, because they can survive on both. They can survive on land, but they require water for the completion of their life cycle. And second question, very important, that a student find an unknown specimen which shows the following character, and on the basis of character we found out that the plant belongs to angiosperm division. Next, move to our third question. Why pteridophytes are considered as the first true terrestrial plants? हमें ये पता है कि सबसे पहले एल्गी प्लांट थे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए, एंड उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए. तो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात यहाँ पे करें, तो जो टेरिडोफाइट्स थे वो फर्स्ट प्लांट थे जिनके पास प्रॉपर रूट्स थी, और वो अपनी रूट्स के थ्रू बिल्कुल फिक्स हो गए थे लैंड के ऊपर. वेयर एज जो ब्रायोफाइट्स थे वो लैंड के ऊपर तो प्रेजेंट थे, ठीक है ना, तो उनमें रूट का कोई स्ट्रक्चर था, रूट नहीं था. रूट लाइक राइजोइड्स जो थे वो प्रेजेंट थे, जो उन्हें फिक्सेशन में उनकी हेल्प करते थे. दे आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द वाटर, हैविली डिपेंडेंट ऑन द वाटर. ये वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. वेयर एज टेरिडोफाइट्स दे हैव रूट दैट हेल्प इन द ट्रू रूट्स दैट हेल्प्स देम टू फिक्सेशन इन द सॉइल, एंड प्लस दे आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन वाटर. ओनली फॉर द reproduction they require water, where the plants that do not have, like the sperms, the male part do not have flagella for movement, they require water for that only. But bryophytes, they do not have either roots, so and they highly depend upon water for their life cycle. That's why pteridophytes are considered as the first true terrestrial plants. Next question from the algae kingdom, algae division. So question is from in the algae we studied about the 3 classes of algae: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. These are the 3 classes which we have studied. On the basis of that we have a question in the form of chart, table. Study the following table that has information related to different classes of algae. So we have a character here, that is habitat and pigment. Habitat means where that lives, the mostly present. So class A present in fresh water, class B mostly marine but also in the fresh water also, and class C is completely marine. Now the major part is pigment. जो हैबिटेट है वो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन पिगमेंट पर्टिकुलर ही प्रेजेंट होगा. तो इन क्लास ए इट इज़ क्लोरोफिल ए एंड बी, इन क्लास बी इट इज़ क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, एंड इन सी इट इज़ फाइकोरिथ्रिन. तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द क्लास ए, बी एंड सी. तो अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल को छोड़ के बाकी अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए और जो बी है, दैट इज अ चीफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी क्लास. नेक्स्ट इज फ्यूकोजेंथिन.
fucoxanthin, that is a pigment of Phaeophyce class, and the last is phycoerythrin, and that is of Rhodophyce. That is of Rhodophyce class. Next is, how does the three classes of algae different from each other in term of reproduction? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीनों क्लासेस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की टाइप है वो डिफरेंट है। तो इसमें तीन टर्म्स हमने की थी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। आइसोगैमी, ooगैमी एंड एनाइसोगैमी। तो क्लास ए जो है वो आइसोगैमी है, परफॉर्म करती है। आइसोगैमी मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल gametes are morphologically and physiologically different from similar in structure and morphology and physiology. Class B perform reproduction of anisogamous. They are means morphologically similar but physiologically they are different from each other. And class C perform which type of reproduction? Oogamous. So I'll write the name here, that class A means Chlorophyce perform isogamous reproduction where male and female are morphologically and physiologically similar. Class B Phaeophyce that perform anisogamous, morphologically similar है but physiologically ये different है. Class C that is Rhodophyce perform oogamous. इसमें मेल जो है वो मूवेबल होगा और फीमेल जो है वो लार्ज साइज में होगा और इमूवेबल होगा, मूवमेंट वो शो नहीं करेगा। इनमें सेम होगा, मूवेबल होंगे दोनों ही, ये भी दोनों मूवेबल होंगे, इसमें मूवेबिलिटी जो है वो फीमेल की खत्म हो जाती है। सो दिस इज अ टैबुलर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास एल्गी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Some vascular plants have swimming sperms while others do not. How do male and female gamete meet? The first A part, a plant having swimming sperms. So a vascular plant means the plant that have a vascular bundles, means the plants from pteridophytes onward, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms. इनमें जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गमीट्स होते हैं, कुछ स्विमिंग होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल गमीट कैसे मिलेंगे? हाउ दे मीट in a plant that have swimming sperms. So if they have swimming sperm, like I'll show here in the diagrammatic form, this is a female gamete, the larger female gamete. If the sperm is able to move, this is sperm and that is able to move, तो वो मूव करके फीमेल गमीट के पास आएगा। ये कैसे मूव करता है ये आपका पार्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स इफ द स्पर्म इज मूवेबल दैट मूव टू द फीमेल गमीट, बट व्हाट हैपन टू दैट दोज दैट डू नॉट एबल टू मूव, तो उस केस में क्या होगा? दिस इज अ फीमेल गमीट, ये फीमेल गमीट है यहाँ पे, तो मेल गमीट जो है वो भी मूवेबल नहीं है, तो ये मेल गमीट है। तो इन दिस केस वाटर करंट, जो वाटर करंट्स हैं वो इसे लेके जाएंगी फीमेल की तरफ, वाटर करंट्स जहाँ पे ये प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लाइक इन एंजियोस्पर्म्स वी नो दैट पॉलिनेशन होता है, तो इसमें वाटर करंट्स यूज हो सकती हैं, ठीक है।
दूसरी एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक विंड यूज़ हो सकती है, विंड लेके जाएगी इसे, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स भी इसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर क्लास का नहीं बताना है, आपने एक एग्जाम्पल देके उसके आगे आप लिख सकते हो कि ये क्लास में ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर आपने चीज़ नहीं बतानी है। तो उसमें आपने जस्ट एजेंट बता देने हैं। इसमें अगर मूव कर सकता है तो उस जो स्पर्म है वो अपने आप चला जाएगा। अगर मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसे एयर, वाटर या इंसेक्ट्स उसे वहाँ पे फीमेल के पास लेके जा सकते हैं।